Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari and in today's session we are picking up again very important topics and themes. मैं फिर से वही बात आपको दोहराना चाहता हूँ. You have to make your own notes, you have to make them in a strategic way, you have to make them in an analytical way. वही आपको अगर आप मेंस लिखते हैं तो कभी काम आएंगे. You have to learn to write in such a way where you are actually enjoying and you are learning and you are actually rising above others in a smart way. That is the only way what to pick up, what to write. यही हमारे कोर्सेज का ध्येय है. डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आर देयर and it is one in all approach which definitely works because our students have been cracking prelims and I also been writing mains examination and surely very soon like in the past many students have got into services, same will be the case here also. सो वी स्टॉप्ड अ लॉट ऑफ वॉर. सीरियस वॉर्स कहना चाह रहे हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने बोल दिया. लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अगर आप सरकार के पार्ट है तो यू आर नॉट गोइंग टू कमेंट अबाउट इट बिकॉज वॉट एवर इज टॉकिंग ही इज टॉकिंग फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम हिज ओन ग्लोरिफिकेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग ए राइट एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. उस पर्सपेक्टिव से आपको इसको देखना है rather than going with the idea. तो कम्युनिकेशन यू टू सी from the perspective of communication basically. It is from the perspective of communication that is to be seen. That is very important. So communication is one keyword over here. Secondly, it describes about hegemony of the US. Thirdly, it speaks about that how a world power can behave many a times in an irresponsible way and can only fulfill their own interest, like the way with respect to Pakistan. So that is why we are not supposed to, government of India is not supposed to answer every and each point set by any power. चाइना बिगिंस कंस्ट्रक्शन ए डैम और ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत. इसका बात यही है, इसके लिए नीति आयोग और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्लान है कि दे आर आल्सो गोइंग टू क्रिएट ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए डैम इन द सियांग, सियांग रीजन में हम करेंगे ऐसा. 80% ऑफ इन जो अभी पावर हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है दैट इज देयर टू बी उसको अभी हमें फ्रूटिफाई करना है. द पोटेंशियल मस्ट बी fulfilled and we are also are very much sure what China is trying to do. China is trying to create even a bigger dam than Three Gorges and उसके पास 20% मैं कहूँगा सिर्फ जो एरिया है जो ब्रह्मपुत्रा का बिफोर इट टेक्स अ बेंड और टर्न इट कम्स इनटू इंडिया. एंड जो चाइना का काम है इट इज creating that project which will be consisting of 5 cascade hydropower stations with investment of around 1.2 trillion yuan. तो बात वही है कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए बिल्कुल तत्पर है. द डैम इज टू बी बिल्ट एट अ ह्यूज गॉर्ज इन द हिमालयन रीचेस वेयर ब्रह्मपुत्र रिवर मेक्स अ ह्यूज यू टर्न टू फ्लो इनटू अरुणाचल प्रदेश एंड देन टू बांग्लादेश. तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है. दैट इज अ वेरी बिग डील और इंडिया में कंसर्न है. लेकिन इंडिया जो है अपना खुद का डैम बनाएगा और 2030 तक वो हो जाना चाहिए. पहले बात हुई थी कि अब तक वो डैम होना चाहिए था बट वी हैव स्टार्टेड लिटिल बिट लेट. सो इंडिया और चाइना ने जो है एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो 2006 में डिस्कस किया था दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ओवर हियर. डेटा शेयरिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिवर्स दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इट. सो द पॉइंट इज we are not unduly bothered. We are going to find a solution. We are not going to plead and request China what it is doing. China can do within its own right whatever it wants to do. We will take all the ideas and all solutions so that we are actually getting not intimidated और हमारे स्ट्रैटेजिक जो इनिशिएटिव और स्ट्रैटेजिक जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे रीच हों. Extend 2-tier STEM curriculum for class 11th and 12th. Again वही बात है कि after deciding to offer science and social sciences at 2 levels at the basic and advanced level, CBSE extend model to STEM subjects at the higher level at 11 and 12, mathematics at 2 level. So that is good. That is a way by which more employment generation and also more clarity would be there with the students. And mathematics is a very very important base for India. So यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया. ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर द बेसिक लेवल. 10 बोर्ड एग्जाम it is already given here that for basic, if you say that about 30% out of the total, about 15 lakh students who have registered, out of them 6 lakh for basic. So that's why it is going with it. So NCERT is releasing new textbooks aligning with the new NEP. So that is another kind of experience for the students and
to make them more job oriented, to get them awareness, to get them opportunities, to get them exposure. So as for social sciences, the advanced level could the meeting minutes note facilitate deeper exploration of historical events, geographical patterns, economic systems, boosting analytical and critical thinking skills. Similarly, is going for mathematics. So that is why this is a step in the right direction. एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट चाइनीज मांझा, वही बात है कि आपसे सिर्फ प्रीलिम्स में तो पूछा नहीं जाएगा, मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है आप करोगे क्या। जब आप 2022 में आपने 15,000 से ज़्यादा आपने जो है धागे इकट्ठे किए, अब अगस्त आ रहा है, पूरे भारत में जो है पतंगों का माहौल होगा मानसून सीजन के बाद। सो दिस सिंथेटिक ग्लास कोटेड काइट्स स्ट्रिंग्स has led to the death of a man and injured another in this year, and has claimed many lives over the past few years. So that is why we need to have a very systematic and a very grounded approach, ताकि हम इसको हर कॉस्ट पर रोक सके। इसके लिए एक पूरा मिशन मोड की जरूरत है। India and Colombia. So India and also Latin America partnership का reflection है इससे। Business is very important, and field of science, technology, and what we can say is that there had been a rise in Colombia's non-mining exports to India, an increase over 80% of the previous sector, like auto components, flowers, chemicals, plastics, and furniture are gaining traction. India's growing industrial economy is actually giving a space for the same. Indian investment have also grown up. Pharmaceuticals, BPO, mining, automobiles, and we can say that Tata Consultancy Services, they have also expanded in that direction. So similarly is the case with the partnership in the food security and agriculture, very important. इससे भी आपको दो तीन पॉइंट निकाल के आपको लिखना है कैसे स्मॉल होल्डिंग फार्मिंग में इंडिया का एक्सपर्टीज है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में। ये तीनों चीजें हम जो है स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के लिए, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम भी है। तो वो कंसोर्टियम के जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, वी आर सपोर्टिंग कोलंबिया इन द सेम। एंड सिमिलरली इज द केस विद द पार्टनरशिप फॉर एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है एनर्जी पार्टनरशिप है। So that is also very, very important. ONGC Videsh Limited is one of the big examples. India is having a collaboration because Colombia is on way to becoming a digital and tech hub of Andes in Latin America. Very important. So India is a predominantly English-speaking country where most of the Latin America, including Colombia, they speak Spanish. So इसका एक बात है कि collaboration के लिए एक बहुत important point है। So गवर्नमेंट का भी collaboration है। For example, आधार which is unique identification software and UPI have been hailed as a resounding success, और वो कोलंबिया में भी replicate हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज अनदर सेक्टर जहाँ पर ये हो सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड अपस्किलिंग and proliferation is happening in different areas. ONGC Videsh Limited, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, because India is Colombia's third largest market for oil, और ONGC विदेश लिमिटेड का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट ये जो हम पॉइंट्स अभी बोल रहे हैं तो सारे आपको एक जगह नहीं लिखने हैं आंसर में। प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आता है, दैट विल बी वेरी स्ट्रेटेजिक, लेकिन मेंस की जहां तक बात है तो इससे आपको दो चार फैक्ट्स और डेटा आपको लगा के अपनी लाइन में लिखना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंटरिम गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया विद देयर फोकस ऑन फंक्शनल कॉम्पिटेंसी इंस्टेड ऑफ द डिसेबिलिटी परसेंटेज। उनका फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कितनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर पॉजिटिव गाइडलाइन। एक तरीके से आप कह सकते हो सम क्वेश्चंस इन एनएमसी गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज की जो बात है, तो वो क्या उनको ईज, इनके लिए ईज है या उनके लिए और ज्यादा प्रोसेस को क्रिटिकल बना देते हैं, ये एंगल सोचने वाला है। क्या ये वाकई एक प्रोग्रेसिव स्टेप है? So government's unique disability ID तो है ही, that mentions the extent of student disability and undergoes certification by one of the 16 designated medical boards in the country. So government ने पहले कोर्ट से पूछा था कि to increase the number of medical boards to ensure that students with disability do not have to come far for the certificate. तो यही वाली बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि गाइडलाइंस जो हैं वो व्हील चेयर बाउंड पर्सन अगर बोला जाए तो क्या कभी डॉक्टर ही नहीं बन पाएगा? How climbing a staircase is necessary for a doctor? How does it matter
if a person drinks their water using a straw or instead of picking up tumbler. तो हमें ये देखना है कि हॉस्पिटल्स के अंदर एलिवेटर्स होने चाहिए रादर देन आस्किंग कि डॉक्टर चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता। तो ये नई जो गाइडलाइंस हैं, ये कह सकते हैं कि दे आर रिस्ट्रिक्टिव इन क्रिटिकल टर्म्स। एंड अब आप बोलिए कि जो व्हील चेयर बाउंड पर्सन है और या फिर जो टू क्रचेज जो यूज करते हैं, स्टडी मेडिसिन पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, वो प्रोग्रेसिव आउटलुक को कैसे देखेंगे। तो इसीलिए एपेक्स कोर्ट ने पहले भी इंटरवेंशन किया है, and it reflects the entrenched unwillingness to engage with the person with disabilities through a right-based inclusive lens. That is what we can say. So, for example, अगर मैं यहाँ एक दो एग्जाम्पल और भी दूँ, for those with disability in their hand, the students are asked whether they can lift objects over their head and place it back, whether they can touch the tip of the nose with the tip of the hand, whether they can eat by themselves, groom and comb by themselves, put on their clothes, button and unbutton or zip unzip, clean themselves after going to toilet, drink water holding a glass, or hold a pen, pencil, or write. For disability of legs, they can bear weight and stand on both their legs, bear weight and stand on affected leg, walk on plain surfaces, sit on a chair by themselves, climb or down. तो ये जो बातें हैं, ऐसी मेंटल इलनेस की बातें हैं, तो क्या आपको जो मेंस के आंसर आप लिखते हैं, आप जब बात करते हैं सोसाइटी की, आप जब बात करते हैं इवन जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी जब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स और इक्वलिटी, तो क्या आप इनमें से कुछ एलिमेंट अगर आप लेके आ सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प। फिशर्स बॉडी स्लैम गवर्नमेंट फॉर अलाउइंग डीप सी वेसल्स। वही बात है, ऑल इंडिया डीप सी फिशर्स एसोसिएशन जो है इस बात से बड़ी नाखुश है कि उन्होंने लार्ज वेसल्स को ऑपरेट करने दिया डीप सी में बियॉन्ड इंडियन सोवरेन मैरीटाइम जोन। उससे क्या होगा, जो स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिशिंग वेसल्स हैं वो अपना धंधा नहीं कर पाएंगे। वो जो है गवर्नमेंट की जो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्मॉल स्केल और ट्रेडिशनल फिशरमैन जो हैं वो तो इतना ज़्यादा मतलब जो है एडवांस मेथड और एडवांस इक्विपमेंट उनके पास नहीं है। So they have requested the union government to revitalize the small scale and traditional fishermen through modernization, cooperative, strengthening their and fair subsidies. तो इसीलिए इंडस्ट्रियल डीप सी वेसल्स आ गए मान लीजिए, तो उनका कैसे होगा फिर। लेकिन पॉइंट वही है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अराउंड 3,14,677 फिशिंग वेसल्स ऑपरेट विद इन ईईजेड। तो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस ओनली रिक्वायर्स 93,000 वेसल्स। सो वही हम कह सकते हैं कि हमने सरकार ने अपना जो कोटा है वो पूरा नहीं किया है। तो गवर्नमेंट ने जब ऐसा बोला तो बॉडी की बातों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओनली 4% ऑफ इंडियाज फिश वेल लाइज इन डीप वाटर एंड ड्यू टू स्कैर्सिटी इन डीप वाटर दीज वेसल्स इवेंचुअली इंक्रोच अपॉन नियर सी जोन्स। Now within 1.5 to 4 lakh watt LED lights at the huge vessel attracting fish from coastal waters, the pressure on already strained near shore ecosystem will be intensified, devastate thousands of small scale boats operating in deep waters where 64,000 fishermen are working. तो उन्होंने कारण भी बताया कि कैसे ये गलत है, कैसे इससे हमारा नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये वेसल जो है वो नियर सी जोन्स में, डीप सी की जगह नियर शोर जोन्स में इंक्रोच कर जाएंगे। और एलईडी लाइट जो उनकी है 1.5 to 4 लाख वॉट, वो एलईडी लाइट जो है वो फिशेस को अट्रैक्ट करती हैं कोस्टल वाटर से, इसलिए ऑलरेडी स्ट्रेन्ड नियर शोर इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो थाउजेंड्स ऑफ जो स्मॉल स्केल बोट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर 64,000 से ज़्यादा फिशरमैन वर्क कर रहे हैं, इट विल बी डेवस्टेटिंग। तो ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है कि कैसे अनसीन जो इश्यूज हैं या किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, ये कैसे उठाए जा सकते हैं। एंड इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन से दैट देयर इज नीड फॉर comprehensive planning or even cooperative or even for that matter आप कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी एक एग्जांपल है। प्रेशर ग्रुप भी ये बन सकता है अगर इनके पास बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पावर होती है और इनको लीडरशिप भी मिलती है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव knew 17 languages without mentioning any of the state they have been alleging Hindi position by the center. Naidu said that now we are asking why should we learn Hindi. तो वही बात है कि जो एनईपी आया और उसके बाद जो डिबेट चल रहा है उसी की बात है। लेकिन गांधी जी ने बहुत पहले दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में चेन्नई में या मद्रास में स्टैब्लिश किया। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव था हिंदी उनको सिखाना जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है।
एक तरीके से हिंदी सीखना राष्ट्र निर्माण में योगदान करना था। मैं भी अभी हिंदी बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो है बेसिक प्रोफिशिएंसी के लिए उन्होंने एग्जाम देना भी शुरू किया, और राष्ट्र भाषा विशारद करके जो है एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करना शुरू किया। हैदराबाद है, विजयवाड़ा है, कोच्चि है, गुलबर्गा है, हिंदी धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि स्टार्टेड राइजिंग। और जो हिंदी का जो पॉपुलैरिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी, कॉरिडोर बन जाएगा। तो कर्नाटका केरला में भी अपोजिशन, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। तो हिंदी ऑर्गेनिकली ग्रो हुई, रेडियो है, टीवी है, और उसके बाद बॉलीवुड है, दूरदर्शन पहुंचा। उसके बाद जो है सैटेलाइट का जो एक्सपेरिमेंट है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टीवी एक्सपेरिमेंट, इसको आपको नोट करना चाहिए। एंड फोकस्ड ऑन कर्नाटका एंड आंध्रा। उसके बाद महाभारत, रामायण, चित्रहार, इनसे आपने हिंदी पकड़ी। और दक्षिणाचल हिंदी समिति ट्रांसलेटेड भक्ति लिटरेचर इनटू साउदर्न लैंग्वेजेस। और आप कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेजेस की मैगजीन कल्पना, गोलकुंडा, दर्पण जो है वो पब्लिश किए गए हैदराबाद से। दीज मैगजीन्स आर पॉपुलर इवन इन नॉर्थ। सो दीज मैगजीन्स गेव राइटिंग इन हिंदी ए पुश। और उसके बाद 2 लैंग्वेज फार्मूला आ जाता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला आया, जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु विच फॉलो द 2 लैंग्वेज पॉलिसी इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स। ऑल अदर साउदर्न इंडियन स्टेट्स हैव अडॉप्टेड 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो इसीलिए ऑपरेटिंग आउट ऑफ यू नो पेरियार नगर, a neighborhood named after E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्होंने एंटी हिंदी एजिटेशन 1930s में किए थे। तमिलनाडु हिंदी प्रचारणी सभा है, एनजीओ रन बाय gentleman M Krishnamurthy. So in Tamil Nadu, no will stop you from teaching or learning Hindi. We have been running the institution from 2009 onwards. So the question is that uh, whether which perspective and with what trust you are doing so. So that is a very good case study जो है दी गई है। और जर्नी ऑफ हिंदी इन द साउदर्न स्टेट्स हम उसको और अच्छे से देख सकते हैं। इंडिया यूएस जो ट्रेड negotiations they are still on the way, and there is a bilateral trade agreement signed by the year end which would make market access in labor intensive sectors, ensuring a significant tariff differential compared to। तो हम इसको देखेंगे, लेकिन आप कीवर्ड ले सकते हैं यहाँ पर bilateral trade agreement, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर मूवमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 2 कीवर्ड्स आप यहाँ से ले लीजिए, दे आर गोइंग टू हेल्प अस। Interim trade deal, same news. US want India to lower duties on auto and buy more energy products, allow genetically modified agriculture products। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, इस पे डिबेट होने की बात है। मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर भी। आपको इसका पूरा सीक्वेंस शुरू से पता होना चाहिए कि इंडिया में आखिर जीएम क्रॉप्स का शुरुआत होती कैसे। तो इस पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, एंड इसमें आप ब्यूटी कॉटन और बाकी को भी लेके आइए। बाकी ये चीजें अभी हो रही हैं। इंडिया ईएफटीए फ्री ट्रेड पैक्ट वो अक्टूबर 1 से हो जाएगा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एंड इंडिया एंड द 4 नेशन ईएफटीए जो है आप कह सकते हैं ऑफिशियली नेम ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप टीईपीए। उसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। मेक ए शॉर्ट नोट। और दूसरा वही है कि यूएस आल्सो ओपनड अप ऑन स्कॉमेट, दैट इज स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। वो चाहता है कि इस पे भी उनको बेनिफिट हो। हाई एनर्जी हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स है, दे कैन बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स यूएस 40 बिलियन, ये फिगर आपको याद रहनी चाहिए। 11 सालों में हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 6 टाइम बढ़ा है। एंड दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस पर आपको सोचना चाहिए। हमने पहले भी चर्चा की कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या इनेबलिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको किया। तो वही फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, और वही फैक्टर्स आपको अपने आंसर में लेके आना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए भी आपको डेटा पता होना चाहिए। India EU free trade talks, resolution of differences in services a major step forward. This is again a very good question मेंस के लिए। और आप कह सकते हैं डिजिटल ट्रेड चैप्टर नेगोशिएशन में जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस की बात है कि क्या ऑनलाइन कॉमर्स या क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा एंड डिजिटल सर्विस होगा कैसे। एंड क्रूशियल सेगमेंट्स हैं क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के लिए। ट्रेड पार्टनर डिसाइड ऑन द कमिटमेंट्स टू रेगुलेट मूवमेंट ऑफ डेटा अक्रॉस बॉर्डर्स। सो ई कॉमर्स और ग्लोबल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हो। और सिग्निफिकेंस यही है कि इट वॉज द मोस्ट कंसेंसस टॉपिक। अब जो है इफेक्टिव एआई सिस्टम्स जो है वो कॉर्नरस्टोन है, उनको यूज़ किया जाएगा। और इंडिया ने जो है डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर अपने स्टैंड को चेंज नहीं किया। कोई भी ऐसे प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स के साथ डब्ल्यूटीओ में जब उन्होंने इंडिया ने जो भी अपना स्टैंड रखा उसी स्टैंड को उन्होंने यहाँ भी रखा। तो क्वेश्चन वही है कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स सच एज मास्टर कार्ड एंड वीजा स्टोर
वीजा स्टोर पेमेंट डेटा ऑफ इंडियन रेजिडेंट विद इन कंट्री ओनली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस दिशा में चलना। और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड की रिपोर्ट ने कहा है कि पावर प्लेटफॉर्म्स एंड फ्री ट्रेड डिल्यूजन हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा फॉर इनोवेशन। तो कंट्रोल ओवर डेटा क्रिएट्स मार्केट पावर एंड बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू प्लेयर। तो इसीलिए इंडिया इंडिया में रखना चाहता है, यूएस का समय, यूके का समय उस तरीके से जा चुका है। तो वही बात है कि डेटा लोकलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन domestic digital infrastructure, enabling enforcement of national laws, safeguarding private and safeguarding privacy and cyber sovereignty। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट जो मैंने बोले इनको आप नोट कर लीजिए। Bharatanatyam exponent Malika Sarukhai on a dance journey, questioning tradition and how pay parity between dancer and vocalist is overlapping Carnatic words debate on caste and gender। तो ये बस जो मैंने लाइन पढ़ी यही बस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम एक्सपोनेंट मल्लिका सरुकई को आप इस तरीके से देखें, आप उनके पॉइंट्स को नोट करें, आप उनको पॉलिटी में कोट कर सकते हैं, सोसाइटी में कोट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर पेपर 1 में कोट हो सकता है, और उसके बाद जो है आप इसको हिस्ट्री ऑप्शनल में आर्ट एंड हेरिटेज के कॉन्टेक्स्ट में जीएस के अंदर कोट कर सकते हैं। Top order to hear Article 143 reference on President and Governor's powers on July 22। That's what we have been speaking about। ये बात हुई है पहले भी, तो उन्होंने अभी सुना, तो टॉप कोर्ट का ओपिनियन क्या होगा, कॉन्ट्योर क्या होंगे, स्कोप क्या होगा, इसकी चर्चा हुई। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर ने, मैम ने इनको मतलब वो किया और उन्होंने रेफरेंस दिया। तो उसके पहले का जो सीक्वेंस है, कैसे सारी चीज शुरू हुई, गवर्नर रवि एंड देन तमिलनाडु coming to the judiciary and then whole thing happening, that must also be seen। PSU dividends to center almost double since 2020। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि PSU जो है 74,000 करोड़ दे रहे हैं। और जबकि ये एनालिसिस में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनलाइज बैंक नहीं आते हैं। तो दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने पिछले 5 साल में ये लगाइए सब कुछ दुगना कर दिया। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 दीज कंपनीज कोल इंडिया लिमिटेड एंड ऑयल एंड गैस लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, गेल, इन सब की बात की तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में दिस शोकेसेस की हमारी इकोनॉमी, हमारा जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद का जो माइंडसेट है वो कितना मदद करने कर रहा है। कश्मीर 1953 के बाद इतना हॉटेस्ट कभी नहीं हुआ एप्पल फार्मिंग के लिए। साइंटिस्ट दे आर फियरिंग द हॉस्टाइल वेदर में थ्रेटन वैलीज टेम्परेट जोन आइडेंटिटी। अगर ऐसा ही रहा तो कश्मीर अपनी जो खूबसूरती है, कश्मीर अपना जो लाइवलीहुड है, कश्मीर अपना जो जन्नत का जो बात है वो हट जाएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एप्पल प्रोडक्शन डिफॉर्म हो जाता है, या तो अनप्रेसिडेंटेड हेल स्टॉर्म आ गया, या फिर आपका हीट बहुत लंबे समय तक रह गया, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी के कारण सोख लेता है। तो थोड़ा सा ज़मीन में हमें नमी चाहिए, और अगर शिफ्ट फ्रॉम ए टेम्परेट जोन टू सब ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन अगर हो गया तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस शिफ्ट इज वरिंग, और जो फ्यूचर है जो फार्मिंग का वो बहुत ब्लीक होगा, क्योंकि पैडी फील्ड्स हैं, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं केसर है, सैफरन है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड वाटर का जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो ठीक से हमें नहीं मिलती है, स्पेशली जो प्रोटेस्ट हैं इन द वैली, तो वो हमें इकोलॉजिकल डिजास्टर की तरफ लेके जाएंगे। पर यहाँ पर आप एक दो वर्ड और भी नोट कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप एनजीओ ने क्या बोला कि क्यों इतना अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ, व्हाट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप्स रोल। तो डिप्रेशन इन ग्राउंड वाटर इज वेरी वेरी डिजास्टर्स। हमें वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव वेज एंड वी हैव टू सी दैट कश्मीर में जो लंबा समय है वो ऐसा ना रहे। झारखंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट सीआरपीएफ ड्यूज जो है 13,000 करोड़ के, उसको टेंडर को वेव कर देना चाहिए, और या फिर उन्हें मिल जाने चाहिए। सीआरपीएफ जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस कैरी कर रहे हैं, झारखंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने ऐसा बोला कि रूटिंग आउट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमिज्म जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड सेंटर। आफ्टर कोविड-19 स्टेट गवर्नमेंट हैज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक रिवाइवल, डीलिंग विद डिजास्टर्स एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर वेलफेयर स्कीम्स। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर तौर पे ये देखा जा सकता है, या उन्हें पता चलेगा कि कैसे
सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रोल है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी कैसे पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है अगर वो इसको एक पॉलिटिकल इश्यू के साथ साथ इसको एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की तरह देखे, और साथ में इकोनॉमिक रिवाइवल अगर हो भी रहा है तो उसमें सेंटर को कैसे सपोर्ट मिलेगा, वो सारे एलिमेंट हमें देखने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं कि आवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन when it gave us so many features, quasi फेडरल फीचर्स दिए, और इट इज टिल्टेड टुवर्ड सेंटर्स, तो ये उसके एक एग्जांपल्स हैं। ब्रिक्स फोरम सीक्स इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ एआई बेनिफिट्स, बिल्कुल सही बात है, और इसके अंदर इंडिया का अपना एक रोल है। इसके अंदर इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बट देन द वे चाइना इज एक्टिव, वी हैव टू सी वेदर हम लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट करके ऐसा बेनिफिट्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एंड प्रमोटिंग अदर गुड गवर्नेंस स्किल्स है, कॉर्पोरेट स्किल्स है, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। Manufacturers are seeking reduction in GST on farm pump sets. So they are asking कि इसको existing 18% से 12% किया जाए, because the government had raised GST to 18% because the manufacturers supplying to the original equipment manufacturers had problems in getting input tax credit. But with 18% GST, farmer processors to buy unbranded pumps that are sold without GST. अब ये एक बहुत बड़ा पंगा है, ये बहुत बड़ा पंगा है। सो इससे क्या है, ब्रांडेड एनर्जी एफिशिएंट पंप्स को नुकसान हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स जो है दे आर टेकिंग अबाउट 13% एज क्रेडिट, रेस्ट इज पास्ड ऑन टू फार्मर्स। बाय रिड्यूसिंग जीएसटी टू 12%, फार्मर विल गेट सब्सटेंशियल कॉस्ट एडवांटेज। तो कुल मिला के नाक को पकड़ने की बात है कि आप नाक को ऐसे पकड़ेंगे या नाक को आप ऐसे पकड़ते हैं, दैट इज हाउ द पॉइंट इज। अगेन, टेक्सटाइल सेक्टर इज सीकिंग यूनिफॉर्म जीएसटी रेट फॉर टेक्सटाइल अपैरल वैल्यू चेन, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिचिंग फॉर फाइबर न्यूट्रल जीएसटी एट 5%। तो इसमें से भी कीवर्ड आपको निकालने पड़ेंगे, मैन मेड फाइबर, प्यूरिफाइड टेरापेथेटिक एसिड, एनएमईजी, मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल, क्रिटिकल इनपुट्स हैं जो, उनके आपको डेटा लेना होगा। साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि कैसे एक्सपेंशन होगा, मेजर एक्सपेंशन कैसे होगा, एंड देन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं फंड्स के साथ, उनको देखना है। सो ये सब मुद्दे हमने पहले भी चर्चा की हैं। आपको सिर्फ एक एलिमेंट उठाना है और उसको फिर बड़े आंसर के अंदर पिरोना है। प्रीलिम्स के अंदर ये डायरेक्ट आने के चांसेस नहीं है। Scientists from Institute of Nano Science and Technology in Mohali, IIT Dharwad and IIT Kharagpur have designed cheap reusable water filter. तो चीप यूजेबल वाटर फिल्टर का आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कैसे उन्होंने जो है, द रिसर्चर्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड थिन स्पॉन्ज लाइक शीट्स ऑफ polylactic acid, I should say, PLA, a biodegradable plastic, and उसको कंपोस्टेबल कप में यूज किया जाता है। पीएलए एक नेचुरली वाटर रेपेलिंग है, तो उन्होंने उसको उसमें सोक कर दिया माइल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। देन नैनो पार्टिकल्स ऑफ बिस्मुथ फेराइट, एंड उसको डिप करके पीएलए शीट से हमने बीएफ फुल इंक बना दिया। विजिबल लाइट के अंदर हमने बीएफ एक्टेड लाइक अ सोलर पावर्ड कैटलिस्ट, और उसके बाद आपने जो है टेस्ट किए उसको, और उसके बाद फिल्टर ने 99% ऑफ कॉम्बो रेड एंड 70% ऑफ मिथाइलिन ब्लू 90 मिनट्स में हटा दिया। इट ऑल्सो पार्शली क्लीन रियल वेस्ट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम टेक्सटाइल प्लांट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। अगर हम इन चीजों का कमर्शलाइजेशन करते हैं, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। BioEmu, again very important for the prelims. BioEmu, it is a new deep learning system developed by Microsoft, and it allows high resolution protein flexibility modeling at scale, जो कि क्लासिकल अप्रोचेस से बहुत अच्छा है। तो प्रोटीन्स क्या है, बस आप ये जान लीजिए, प्रोटीन्स आर डायनामिक मॉलिक्यूल्स दैट ट्विस्ट एंड फ्लेक्स, देयर मूवमेंट आर वेरी क्रूशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस। BioEmu is an AI system, predicts the full range of protein shapes, and BioEmu uses diffusion modules to generate thousands of protein conformations, accurately captures large and small protein shape. BioEmu produces stable protein shape fast. BioEmu currently lacks modeling of protein interactions and environmental factors. तो ये हम कीवर्ड यहाँ से ले सकते हैं, especially for the prelims. Non-invasive tech records blood sodium in real time. Non-invasive way to measure sodium levels in blood using a terahertz
ऑप्टा, ऑप्टो acoustics, बस ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट. So the tech shines high frequency light on blood and listens to sound waves produced by sodium ions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैंने फिनोमेना आपको सिंपल बताया. फॉर प्रीलिम्स आल्सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड इन मेंस जब टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आते हैं वहां आपको लिखना पड़ेगा. वूलर बैक इन द पिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी. इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से आप कैसे बचाएंगे, कैसे वहां पर दोबारा से कमल खिले हैं, कैसे ड्रेजिंग और कैसे आपने सिल्ट को रिमूव किया, कैसे एनजीओ ने रोल प्ले किया, कैसे कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने किया. This is very, very important. Local communities have played a very, very important role because lotus acted as a barometer of ecological health. So lotus stems are collected through an arduous exercise as they are considered a delicacy. Traditionally cooked with fresh water, fish, the stems are a must-have item at weddings in Kashmir. India's millet standard, again, we have spoken about this also in our main answers when we are writing and doing it. This is a very, very important exercise. A committee has been set up and co-chaired by Mali and Nigeria and Senegal. It reviewed the progress of its work during a 5-day meeting that concluded at FAO headquarters in Rome. So India's millet standard they have they have got recognition at a Codex Executive Committee meeting in Rome. So that means more business, more export, more prosperity, more food processing structure over here, and so many ideas you can think of. So Codex Alimentarius Commission, this is very important. CAC47 for the prelims. इसकी मीटिंग की हम बात कर रहे हैं. तो अब जो है इंडिया एक इलेक्टेड मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी का, एंड देन वी हैव पुट फॉरवर्डेड दैट कैसे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो these standards have been approved, and India actively participated in the discussions, and India recommended that monitoring indicators should be outcome based, measurable and considered. And capacity build programs, as I just said, with respect to Bhutan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Timor, ये सब चलेगा ही चलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. डीजी इंडिया, तो वही बात है, गवर्नेंस गोज डिजिटल, कॉल्स इट टेकेड. डिजिटल इंडिया इज एन एम्पावर्ड इंडिया, बूस्टिंग ईज ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो की चैलेंजेस जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में मेंस के आंसर की तरह दिया गया है. मिसिंग इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी, extend beyond government for better use experience, bank, telecom, insurance, retail. Digital public ecosystems will require robust data protection, and language expansion will help users to access language in their access services in their preferred language. Very important. हमने दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो डीपीआई का, नीचे आप देखेंगे तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग. So these figures, they must be brought up in the main answer anyhow. आप इनको नोट कीजिए, पॉइंट्स में लेके आइए. E-waste gold mine, very important, again very important theme, very important theme. India is sitting on a massive pile of electronic waste, we can say. While recycling rates have increased, the lion's share remain unprocessed. So आप देखिए, e-waste generated in India in 2019-20 was 1.1 million metric tons. Now वो बढ़कर हो गया 1.75. तो इतना जब आप हो गए 1.75 मिलियन मेट्रिक टन जब आप कर रहे हैं, और इसमें 60 to 70% कंज्यूमर ई-वेस्ट स्टिल फ्लोज थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स. 72% surge in India's e-waste generation over 5 years. 57% e-waste generated in India remains unprocessed. So that is why there is a great opportunity. E-waste is discarded and ended up in landfills. It's a booming sector. Valuable metals like gold, silver, copper, and rare earth is embedded in e-waste. This makes e-waste cycling, recycling a critical part of solution fostering circular economy. Similarly, the way forward lies in sensitizing people, strengthening formal collection and recycling systems, incentivizing safe disposal, and so forth. So that is why very important. India is the third largest producer of e-waste globally, trailing only China and US as per the reports. तो कंसर्न भी है, और उसके बाद जो है इनफॉर्मल सेक्टर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस जो हैं, जैसे आप कैसे इनोवेटिव बिजनेस मॉडल लाइक प्रोडक्ट एज ए सर्विस, रिपेयर एज ए सर्विस, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, वो आप कैसे करेंगे. और पॉलिटी स्पेस प्रिंसिपल, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, जो शेयर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी
हम डिस्कस कर चुके हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. रेड फ्लैग्स फॉर रेनी सीजन में चिकनगुनिया है, डेंगू है, और उसके बाद जो है मॉस्किटो नेट रेडी रखिए, फिजिशियन को जब जरूरी तब दिखाइए. ये सारी बातें हम कर चुके हैं. कॉमन सो विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मेजर्स वी हैव टू सी कि अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्यों के क्या हो सकते हैं, क्या मतलब क्या ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, क्या स्टेट लेवल पे, क्या पंचायत लेवल पे, एंड what kind of pattern one can see. For example, in Jammu and Kashmir and Himachal जो है वो अब रेगुलर आउटब्रेक होने लगे हैं. सो दैट इज वाई डेंगू बेल्ट, दैट इज व्हाट वन कैन क्लेम. सो इसीलिए जो आपका नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, उनका नाम आप नहीं लिख रहे हैं अगर मेंस के आंसर में, तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी चीजें सब लोग लिख ही रहेंगे. नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. Hidden risks of natural supplements. So deficiency should be treated. Excess intake of vitamin A, D, E, K can cause toxicity. This is very very important. क्योंकि आप नेचुरल सप्लीमेंट आप लेते जाते हैं और वो हो सकता है कि दे आर गोइंग टू क्रिएट टॉक्सिसिटी. People often take vitamin C or zinc in large amount to boost immunity, but this offers little poor benefit. That's what water soluble vitamins like B complex and C are generally safer as they are excreted more easily अगर ओवर यूज भी हो जाए. तो इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दे कैन नॉट बी टेकन टू मच. So that's how we have to see. Apollo Soyuz test project brought Soviet and NASA astronauts together. तो ये एक पहले की स्टोरी है. Simple handshake in orbit transformed the space race. Very important. Some 140 miles above France, American astronauts opened a spacecraft hatch and found themselves face to face with cosmonauts from Soviet Union. Glad to see you. Colonel Alexei Leonov spoke in accented English to Brigadier General Thomas Stafford of NASA. So that's how it is. Today, Russia and America astronauts routinely share rides to International Space Station. जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है कि ये बात वहाँ से अलग है. So the handshake which occurred 50 years ago on this July 17, that is defining the Apollo Soyuz test project, the first international human space flight. Symbol of partnership between the bitter competitors. That's what one can say. India has run their own way. So एक ये पूरी स्टोरी यहाँ पर दी गई है कैसे यूएस जो है वो compete करता है चाइना से भी अभी डोमिनेंस के लिए. बट 50th एनिवर्सरी पे आप ये कह सकते हो कि अभी इनफ स्कोप है अपोलो सुएज मिशन के बावजूद, हम ये कह सकते हैं. और इंडिया का अपना एक रोल है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया के भी मिशंस हैं. दैट इज हाउ दैट इज हैपनिंग. तो सेकंड जो अपोलो सोयज मिशन था वो प्लान किया गया, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया. और आप कह सकते हैं कि एक ही जो दो सुपर पावर्स उन्होंने कोलैबोरेशंस किए, जैसे नासा का स्पेस शटल क्रू कैनेडियन, यूरोपियन, जापानीज एस्ट्रोनॉट्स को, जबकि सोवियत यूनियन जो है वो क्यूबा, पोलैंड, वियतनाम, अफगानिस्तान उन कंट्रीज से लेके आए. और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद आप कह सकते हो कि अमेरिकन एंड रशियन अगेन जॉइंट फोर्सेज इन स्पेस. फर्स्ट अबाउट द मीर स्पेस स्टेशन early 90s. The American-Russian partnership is now the backbone of the ISS, which remained continuously inhabited since 2000. तो ये एक बहुत अच्छा हमारे एस्से के लिए, हमारी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा आउटलुक है जो आप यहाँ से पॉइंट बना सकते हैं. So this is all for the day, where we have seen all important elements and all important ideas, where I would like you to make your own notes. Again, I am warning, and you must be writing them carefully so that you revise later on and able to bring them in your answers. क्योंकि यही रास्ता प्रीलिम्स का है, यही रास्ता मेंस का है, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू टेक यू टू द सक्सेस आल्सो. सो विशिंग यू ऑल सक्सेस बाय different means, approaches, programs, pedagogies with Ansarkari, because there is no shortcut to success, but that doesn't mean you should toil unwarrantedly. We must work in a smart way. Only smart things can bring success in a short manner. Thank you very much.